Good morning, dear students. Welcome back again in your computer class. In the last video, we have discussed question answers of chapter number 4. Now here, I am going to start chapter number 6, that is first step in Java. So, let us start. Firstly, we will look that how many topics we are going to discuss in this. So in this chapter we are total having 9 topics, right? And in these 9 topics we will come to know about a very interesting language, that is your Java language. And this language is very very important, and this one you will study up to your 12th standard. Up to 10th standard it is compulsory for you. If you take computer subject, after that it's your choice whether you want that computer subject or not, right? So let us start with the first one topic. Here is the introduction part. Okay, now firstly we will discuss that what is actually this Java language, because the chapter is all about Java. So we will discuss about this Java, right? So as you all know that in our daily life, in our day-to-day life, we are having so many problems that we face, right? For example, if I go to the market or if I go to any mall, so what we'll do, we do some purchasing, and after doing some purchasing we get some bill that needs to be paid by us. That means that needs to be paid by the user. Okay, and if manually it will be calculated, so it will take a lot of time, obviously, because in a mall thousands of people visit daily, right? And if I will calculate that amount, that means the whatever shopping the one person does, so it will take a lot of time. So that is a very small problem, right? बट मैनुअली अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. सो वी कैन डू वन थिंग, दैट इन कंप्यूटर्स वी आर हैविंग सो मैनी लैंग्वेजेस दैट मेक्स आवर टास्क ईजियर. So in the same way, Java is one of the programming language that makes our task easier. So we are going to learn this language here. That means when it was developed, in which year it was developed, and where it was developed, who developed this language. So you will get the answers of all these questions in the first paragraph. Look at here. Java was conceived at Sun Microsystem in 1991. It took 18 months to develop the first version called Oak. It was finally named as Java in 1995. Now what does this mean? It means that in 1991 at Sun Microsoft company a language was designed which was named as Oak. एक लैंग्वेज बनाई गई 1991 में, in 1991 लैंग्वेज Oak, ठीक है. बट दिस ओक लैंग्वेज वॉज हैविंग सम डिसएडवांटेज, और यू कैन से दिस लैंग्वेज वॉज हैविंग सम ड्रॉबैक. उसके अपने कुछ ड्रॉबैक थे इस ओक लैंग्वेज के. सो लेटर ऑन सम रिविजन्स वर मेड into this language Oak, and in 1995 a new language was launched, and that language is known as your Java language. दैट मीन्स लैंग्वेज वो सेम ओक लैंग्वेज जो थी उसी को रिनेम करके जावा लैंग्वेज किया गया, बट सम रिविजन्स वर मेड. दैट मीन्स आफ्टर अपग्रेडेशन सम न्यू वर्जन्स ऑफ ओक लैंग्वेज वॉज रिलीज्ड, right? And if I ask you the question that who actually developed this language, so the answer is, your answer is James Gosling. James Gosling is one of the person who actually developed this language Java. So if I ask you that who developed Java, so answer is James Gosling. If I ask you in which year it was developed, so in 1995. And if I ask you that at which company this language was developed, so the answer is Sun Microsystem. This is the basic information about Java language. Now we will study some features of this Java. Java is linked with the online environment of the internet. दैट मीन्स जावा लैंग्वेज को हम ऑनलाइन एनवायरनमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, इसको इंटरनेट की हेल्प से भी हम इसको यूज़
कर सकते हैं. Java is the first and foremost object oriented programming, that is your OOP language. Now what is actually this OOP language? You need not to bother about it कि what is OOP language. You should know that Java is a OOP language. That means OOPs के जो features होते हैं, actually OOP एक language आप कह सकते हो, kind of language which have its own features, and that features in detail you will study in your 9th class, not here. So up to now you should know only what that Java is a object oriented programming language in which we can create a number of objects for it. हम एक Java language के कितने भी objects बना सकते हैं, ठीक है. So इसलिए हम इसको बोलते हैं object oriented programming language. Now next feature is what? It is a portable language. Look at it. It is a portable language. It is a platform independent language that can be used to produce the code that will run on different processors under different operating system. Now what does this mean? It is a portable language. Portable का मतलब होता है that it can be easily carried from one place to another place. It can be easily carried out from one place to another place. Like example is, if previously you have seen that we were having that lead line phones at our homes. If I want to communicate with another person, so we used what? We used that आप कह सकते हो कि जो बेसिक टेलीफोन्स होते थे हम उनका यूज़ करते थे विद दैट आर कनेक्टेड विद द वायर्स और समथिंग, राइट. बट नाउ अ डेज वी आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड वी कैन ईजिली टॉक फ्रॉम टू द अनदर पर्सन, यानी कि एंड वी कैन ईजिली टेक मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डजेंट मैटर. यानी कि एक रूम से दूसरे रूम में या एक सिटी से दूसरे सिटी में भी आप ईजिली कैरी कर सकते हो. बट जो पहले आपके जो टेलीफोन्स आते थे, आप उनको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने में भी देर विल बी सम प्रॉब्लम, यानी कि आप उसे घर से बाहर नहीं लेके जा सकते थे. सो दैट वाज द ड्रॉबैक, राइट. सो दैट मीन्स पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब होता है यू कैन ईजिली टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट? हियर वी हैव वन मोर टर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इट मीन्स दैट वी कैन टेक द जावा प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. यानी कि Java doesn't depend on the platform on which you are running this. But as you all know that when you use the computer, so inside the computer we are having a software that is known as your what? OS. OS means operating system. And operating system you can say as the brain of the computer systems. यानी कि if operating system will not be there in the computer, so it is simply a box and it is nothing. मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ एक्चुअली यूजलेस. कंप्यूटर का या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो गए या फिर लैपटॉप्स आपके पास हो गए, इनका कोई भी यूज़ नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो कि वर्क्स एज अ ड्राइवर ऑफ योर कंप्यूटर, राइट. एक ड्राइवर की तरह काम करता है जो सारी फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज करने का काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? टू मैनेज ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, राइट. सो आप क्या होता है कि व्हेन यू राइट द प्रोग्राम, ठीक है, व्हेन यू राइट द प्रोग्राम एंड सो एज यू नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम यूज़ करते हैं, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या बोल रहे हैं? प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ इफ़ आई एम यूजिंग, सपोज आई एम हैविंग अ लैपटॉप एट माई होम एंड आई एम यूजिंग सपोज Windows 7. आई एम यूजिंग what? Windows 7 and you are using Windows 8, suppose you are using Windows 8. So that means we both are using the computer system, we both are using electronic device, but you are using some different platform and I am using some different platform. मैं कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो दोनों का प्लेटफॉर्म तो अलग है. बट इट डजेंट मीन दैट इफ़ यू विल क्रिएट अ जावा प्रोग्राम ऑन योर लैपटॉप देन आई कांट रन इट, बिकॉज जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपने अगर उसको एक सिस्टम पे लिखा है तो आप उसको दूसरे सिस्टम पे भी लेके जा सकते हो. सो इट मीन्स योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. I hope both the terms are clear. Portable means you can easily take from one place to another place. Platform independent means the same thing. Both the terms are used interchangeably here. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब भी यही होता है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जा सकते हो. इररेस्पेक्टिव, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी ऑफ सेम टाइप. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई जावा प्रोग्राम बना के दिया तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपके पास भी होना चाहिए. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है. आप कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो एंड आई कैन यूज़ समथिंग डिफरेंट एंड वी कैन ईजिली इंटरचेंज आवर जावा प्रोग्राम. So that's why Java is a platform independent language. Then
This was a complete introduction of your first part, right? Now moving on to Java compilation process here. Contrary to ordinary compilers, the Java compiler does not produce native executable code for a particular machine. Instead, it produces special format called bytecode. Now, before discussing all the process of this Java compilation, let me tell you about the meaning of compilation. Compilation का मतलब क्या होता है? See, now assume, I will give you one real-time example so that you can easily understand what is the meaning of compiler. So if we are having two person, like person 1 is standing here, person 2 is standing here. Now person 1 wants to say something to person 2. But the problem is what? Person 1 knows only your English language. And person 2 knows only Hindi language, suppose, right? So if person 1 will speak something to person 2, so my question is, person 2 can be able to identify that what the person 1 is speaking. पर्सन 1 अगर पर्सन 2 से कुछ कह रहा है तो वो इंग्लिश में कह रहा है, ठीक है, तो क्या पर्सन 2 ये समझ पाएगा कि पर्सन 1 ने उससे क्या कहा है? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, नो, नॉट एट ऑल, है ना, बिकॉज पर्सन 2 कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ही कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हाट? हिंदी लैंग्वेज. दैट मीन्स no. In the same way, if person 2 will speak something to person 1, so person 1 also cannot understand something. So solution is what? क्या solution हो सकता है? Solution is this, that in between I can use a translator. In between I can use a translator whose job is what? To convert the language from one type to another type. ठीक है? That is understandable by that respective person. मतलब if person 1 says something to person 2, तो वो पहले किसके पास जाएगा? ट्रांसलेटर के पास. एंड ट्रांसलेटर एक ऐसा आपके पास यू कैन से एज अ मीडिएटर होगा दैट नोज बोथ द टाइप ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. तो person 1 if speak out something, तो firstly it will get passed to the translator, then translator will convert it into Hindi, and after converting it into Hindi he will pass it to person 2. So person 2 can easily identify what the person 1 wants to say. In the same way, अगर person 2 कुछ बोलेगा तो पहले वो ट्रांसलेटर के पास जाएगा एंड ट्रांसलेटर से फिर किसके पास जाएगा? person 1 के पास. Am I clear? Then यानी कि ट्रांसलेटर का जॉब क्या है? What is the use of translator? To convert one type of language to the another type. That is easily understandable by both the persons. ठीक है? सो ट्रांसलेटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है हमें, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक पर्सन हो सकता है कुछ और लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है, सेकंड पर्सन कुछ और लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी. ऐसे ही क्या होता है, इन द सेम वे सपोज आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, सो हेयर आई एम सिटिंग, दिस इज़ अ यूज़र विच इज़ यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज़ द यूज़र, ठीक है, एंड हेयर वी आर हैविंग अ कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज़ योर कंप्यूटर, राइट. ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है. नाउ इफ़ यू विल गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम, सो द प्रॉब्लम इज़ व्हाट? यूज़र, मतलब जैसे मैं बात करती हूँ अपनी, तो यूज़र मुझे पता है कि आई नो आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, सो आई कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी सेंटेंस, मतलब हिंदी के फॉर्म में दे सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट? कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, एंड व्हाट इज़ दैट? इट इज़ योर बाइनरी लैंग्वेज. इसको बाइनरी भी बोल सकते हो और यू कैन से इट एज मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस. ऑलरेडी आप चीज़ पढ़ते आ रहे हो 6th स्टैंडर्ड से, 5th में भी आपने पढ़ा, 6th में पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है ये चीज़ कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है. सो मशीन लैंग्वेज इट इज़ वॉट? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, ठीक है. तो यूज़र जब कुछ बोलेगा इंग्लिश या हिंदी में, तो कंप्यूटर के पास जब वो इंस्ट्रक्शन जाएगी तो कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस. In the same way, when computer will perform some task, यानी कि computer perform some calculation, so after performing some calculation, it will pass the output to the user again. आपने पहले कुछ इनपुट दिया,
कंप्यूटर ने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की और आउटपुट दिया आपको वापस से. तो कंप्यूटर व्हेन प्रोवाइड द आउटपुट, सो इट विल गेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ जीरोज वन. बट द प्रॉब्लम इज अगेन सेम, यूज़र को तो यूज 0 1 समझ में ही नहीं आएगा, राइट. तो क्या होगा उस केस में, हमें क्या चाहिए, इन बिटवीन आई नीड अ ट्रांसलेटर. In between I need a translator whose job is to convert one type to another type language, right. So यही हमारा जावा कंपाइलर का काम होता है. जावा कंपाइलर हमारा क्या करता है, आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आप प्रोग्राम लिखते हो इंग्लिश के फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी के फॉर्म में. दैट मीन्स किस फॉर्म में, मशीन के फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, राइट. So this is the use of compiler. तो we are having actually two types of translators. Translators हमारे पास दो types के होते हैं. First is your compiler. First is your compiler, and second one, let me write it here again. First is your compiler, and the second one is interpreter. Okay. First is compiler, second is interpreter. सो कंपाइलर का मतलब समझ में आ गया है होप सबको कि कंपाइलर क्या कर रहा है, और इंटरप्रेटर भी हम डिस्कस करेंगे क्या करता है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन इफ़ आई हैव सम प्रॉब्लम एंड आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ इट, सो आई विल डू व्हाट, आई विल पास सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. मैं कुछ ऐसा, मेरे को अगर कोई एक प्रॉब्लम दी गई है कि मुझे सपोज करो आप जैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हो, राइट. सो कैलकुलेटर में आपने जैसे पास किया 2 + 3, सो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर 5. बट हाउ यू एक्चुअली गेट दैट आंसर 5, ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 + 3 प्रेस किया आपको बस 5 मिल गया. ऑब्वियसली देयर शुड बी सम इंस्ट्रक्शंस दैट विल गेट इंटरनली प्रोसेस्ड बाय द कैलकुलेटर सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट आउटपुट. कैलकुलेटर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा हुआ होगा, कुछ तो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी होगी ना, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर आप 2 + 3 करोगे सो यू विल गेट हियर 5. इफ़ यू विल डू सपोज 3 - 2 सो यू विल गेट 1. इफ़ यू विल डू 3 × 2 सो यू विल गेट 6, राइट. तो कुछ तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ होगा जिसकी बेसिस पे कैलकुलेशन परफॉर्म होती है. इन द सेम वे हम कंप्यूटर्स को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, वो कैलकुलेट होता है एंड देन यू विल गेट सम आउटपुट. तो हम जो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली लिखते हैं ना, हम जो इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, दिस इज़ नोन एज योर जावा प्रोग्राम. नाउ जावा प्रोग्राम का यूज़ क्या है, जावा प्रोग्राम्स आर यूज टू परफॉर्म सम टास्क. Okay, now these Java programs also known as source code. These Java programs which we write is also known as your source code, right. Now look at here, in the compiler it is given as Java compiler does not produce native machine executable code for a particular machine. Instead it produces a special format called bytecode. The Java bytecode is a machine instruction for a Java processor chip called Java Virtual Machine. ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आपको पास टास्क दिया हुआ है कि हाउ द कंपाइलेशन प्रोसेस, दैट मीन्स हाउ द कन्वर्जन प्रोसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस. कन्वर्जन किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर होता है, ये पूरा डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको अभी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हियर. सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू राइट सोर्स कोड. सोर्स कोड का मतलब क्या होगा, जावा प्रोग्राम दैट विल गेट पास टू द कंपाइलर. Now compiler is actually compiler will work as a translator and it will convert this into a code, and that code is known as your bytecode. आपने एक सोर्स कोड पास किया, वो कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, तो वो कुछ कन्वर्जन परफॉर्म करेगा. कन्वर्ट करने के बाद हमारे सोर्स कोड को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. देन वो बाइट कोड हमारे पास जाता है एक मशीन के पास, एंड दैट मशीन इज़ नोन एज योर JVM, जावा वर्चुअल मशीन. दैट मशीन इज़ नोन एज योर जावा वर्चुअल machine. In that Java virtual machine there is one more device that is known as your interpreter. अभी हमने डिस्कस किया था that we are having two types of language translator, one is your compiler and one is your interpreter, right. So JVM के पास जाएगा, JVM में अपना interpreter होता है and then it will produce the native machine code from here. I am not having the space on the right side, so I have used the arrow in the upward direction. आप इसी के आगे continuation में बनाओगे, so it will produce here native machine code. I am writing here m.c. okay.
अब देखते हैं इसका मीनिंग दोबारा से एक बार और। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, दैट विल गेट पास टू योर कंपाइलर। कंपाइलर इज एक्चुअली अ ट्रांसलेटर। नाउ द ट्रांसलेटर का प्रोसेस क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो जो हमने सोर्स कोड लिखा था उसने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाइट कोड की फॉर्म में। नाउ दिस बाइट कोड इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ये किस फॉर्म में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा। अब ये जो बाइट कोड होगा वो किसके पास जाएगा, JVM के पास जाएगा। JVM की फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। Mark it in your book very properly because full forms will definitely come in your exams, half yearly or maybe annual. So mark in your book that full form of JVM. नाउ दैट JVM के अंदर अपना एक और ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। और ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, दैट विल रिसीव योर बाइट कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू नेटिव मशीन कोड। नाउ व्हाट इज़ दिस नेटिव मशीन कोड, ये इसका क्या मतलब है, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बोलते हो ना कि माई नेटिव प्लेस इज़ दिस, कि मतलब मैं पर्टिकुलर उस जगह से ही बिलोंग करता हूँ, मतलब वो मेरी जगह है, बाकी एड्रेस तो कहीं भी चेंज हो सकते हैं। मीन्स इफ़ यू आर सपोज पेरेंट्स जॉब गॉट शिफ्टेड टू एनी अदर प्लेस, या पेरेंट्स का जॉब का ट्रांसफ़र हो गया तो आप कहीं भी जा सकते हो, बट दैट इज़ नॉट योर नेटिव एड्रेस। आपका नेटिव एड्रेस क्या होगा, जो आपका एक फिक्स एड्रेस होता है, जैसे योर ग्रैंड पेरेंट्स एड्रेस, राइट। सो दैट इज़ नोन एज अ नेटिव एड्रेस। इन द सेम वे, अब वो क्या है, वो जो नेटिव एड्रेस है एक्चुअली वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो नेटिव मशीन कोड होता है दैट इज़ जनरेटेड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, दैट इज़ जनरेटेड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन ओनली। सो सपोज यहाँ पे 3 यूज़र्स बैठे हैं, यूज़र नंबर 1, यूज़र नंबर 2, यूज़र नंबर 3, ठीक है। सो इफ़ यू आर यूजिंग हेयर, इफ़ यू आर यूजिंग यूज़र 1 यूज़ कर रहा है सपोज़ एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, एक यहाँ पे सेकेंड यूज़र बैठा है जो कि यूज़ कर रहा है विंडोज़ 8, एंड वन मोर इज़ देयर विच इज़ यूजिंग सपोज विंडोज़ 10. So interpreter will do what? Interpreter will convert the byte code into native machine code according to Windows 7, and here it will be generated for Windows 8, and here machine code will be generated for Windows 10. Now what will happen here, जो भी कोड आप 7 मशीन के लिए जनरेट होगा यानी कि विंडोज़ 7 के लिए, दैट विल नॉट गेट अप्लाइड टू विंडोज़ 8। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। आपने जो भी मशीन कोड इंटरप्रेटर ने जनरेट किया है वो एक पर्टिकुलर मशीन के लिए जनरेट होता है। तो अगर मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रही हूँ, मेरा लैपटॉप पे विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, तो क्या होगा, मेरा जो कोड होगा वो अलग होगा आपके वाले सिस्टम के कोड से। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोड ले जाके आपके वाले कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करा सकती हूँ, डजन नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज योर नेटिव कोड। तो नेटिव कोड इज़ एक्चुअली डिज़ाइंड फॉर अ पर्टिकुलर machine only, and that native code cannot be applied or cannot be used on any other operating system or any other computer system. So this is all about your Java compilation process. So whatever I have explained here, I tried to explain with the help of diagram here, but in your book it is given theoretically, so you can read out. आप जब read करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यही पूरा जो process है that is given theoretically in your book, right? Then the last topic is here, that is your Java virtual machine. Now Java virtual machine we have discussed. So programs written in Java are compiled into bytecode. हमने देखा कि जो भी हम प्रोग्राम Java प्रोग्राम्स लिखते हैं that got compiled and produce a bytecode, right, which is then interpreted by a special Java interpreter. वो किसके पास जाता है बाइट कोड, इंटरप्रेटर के पास जाता है for a specific platform, and this interpreter is known as your JVM. Already we have completed this one. Now machine language for the Java virtual machine is called Java bytecode. ये भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ जावा बाइट कोड, व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज. नाउ एक्चुअली द जावा इंटरप्रेटर रनिंग ऑन एनी वर्चुअल मशीन बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल प्रोसेसर चिप, दैट इज़ वाई द नेम इज़ नोन एज जावा वर्चुअल मशीन. अब ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने क्या बोला है कि द जावा, लुक एट हियर फ्रॉम दिस टू दिस, द जावा इंटरप्रेटर रनिंग ऑन एनी मशीन appears and behaves like a virtual processor chip. That's why the name is at Java virtual machine. Actually क्या होता है, जब आपका बाइट कोड जनरेट होता है, so that byte code will get passed to a machine. That machine is known as your JVM.
ठीक है. बट दिस मशीन डजेंट मीन दैट इट फिजिकली एग्जिस्ट इन टू योर CPU. This machine is actually a virtual machine. Now virtual means what? Which doesn't physically exist. मीन्स नॉन टेंजेबल एंटिटी. नॉन टेंजेबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, वो होता है वर्चुअल. तो ये जो JVM है ये कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ डिवाइस की पर्टिकुलर डिवाइस है कि जो आपकी CPU में लगी होती है. ये कैसी होती है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर चिप इनटू द CPU. दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज वर्चुअल मशीन. तो वर्चुअल का मतलब है इमेजनरी होती है, कि मतलब ये कोई पर्टिकुलर मशीन नहीं है. जैसे कि CPU होता है, CPU यू कैन ईजली टच, ठीक है. सो दैट इज़ अ फिजिकल मशीन. इफ़ आई से माउस, इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल. इफ़ आई से कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल, ठीक है. कीबोर्ड इज़ अ फिजिकल डिवाइस. बट जावा वर्चुअल मशीन है तो ये मशीन ही, बट ये कैसी है? इमेजनरी मशीन है. तो यानी कि ये कोई पर्टिकुलर मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है. दिस इज़ ओनली अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. Right, then the last thing is here, JVM is combined with Java APIs, and that Java API full form is application programming interface. ठीक है, that is a library of compiled code that can be used in your program. अभी एक और चीज़ जो यहाँ पे बताने से रह गया था आपका, that is your word, कि when you use JVM, so JVM के अंदर we are having what? JVM uses interpreter. JVM uses interpreter along with जावा APIs. इंटरप्रेटर के साथ वो क्या यूज़ करता है? API का यूज़ करता है. नाउ द फुल फॉर्म इज़ व्हाट? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. अब ये क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? इट मीन्स सम सेट ऑफ कंपाइल्ड कोड. सम सेट ऑफ कंपाइल्ड कोड मतलब कुछ ऐसा कोड दैट वी कैन डायरेक्टली यूज़ इन टू आवर प्रोग्राम सो दैट आवर टास्क बिकम्स ईजी. कुछ ऐसे कोड होते हैं, कई बार जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे कोड एग्जिस्ट होते हैं जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. उनको डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वो उससे क्या होता है कि हमारा जो टास्क होता है, हमें जो प्रॉब्लम दी गई होती है, उसका जब हम सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, व्हेन वी डिज़ाइन द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो जावा API हेल्प्स अस अ लॉट, ठीक है. सो दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ API. नाउ आई विल नॉट गो इन टू डिटेल दैट वॉट इट इज़ एक्चुअली, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर मीन्स नॉट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, नॉट इन योर सिलेबस. टू मच डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझना है कि वॉट इज़ जावा APIs. सो यू कैन राइट द सेकेंड फुल फॉर्म, दैट इज़ योर API. ओके, सो वी हैव completed here discussion about what is Java. We have discussed about what is Java, who developed it, in which year it was developed, then some features of it, like it is a portable language, it is a platform independent language, it is object oriented language. So these are some features. And if I talk about the full forms that we have done up to now, so the first full form is JVM, you can mark. The second one is OOP, and the third one is API, right? Then we have discussed about the compilation process also here. So that's all for today. Then we will discuss it. Next topic we will start in the new video. Thank you.